Namaskar. In previous class, that is in lecture number 21, we had done about capacitance. What is the capacitance? I have already taught you that in previous lecture that capacitance of a conductor is capacity to store the charges. And the concept of capacitance originates from where we had already studied about it in previous lectures. That we know that supposed to be I have a conductor. This is I have a spherical conductor. Now this conductor has got some charge. If this conductor has got some charge, it has some potential. It has some on potential V, and the potential of this conductor will be V is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R. This R is the radius of this spherical conductor. Okay, from here we can find the relation between the potential and the charge. The potential is proportionate to the charge. That is, if we increase the charge, the potential will increase. That is, the potential of a conductor is proportionate to the charge present on the conductor. That is, we can write this in this form that Q per the potential of the conductor is proportionate to the charge. Okay, now Q. Now we remove out this symbol of proportionate and put a constant here, and that is C, and this is B. That is Q is equal to CB. Now this C is a constant, and this constant is known as the capacitance of the conductor. So this is the topic which we will study to upcoming 14 or 15 days. So we had defined in previous class what is capacitance, what is C. In previous class we had defined that supposed to be there is a conductor I have. This is a conductor. Now this conductor has got some charges. If this conductor has got some charges, it has potential. Now we increase the charge of this conductor. We observe that the potential is also increasing. Now we give 5 coulomb charge to this conductor. When we give 5 coulomb charge to this conductor, then we observe that the potential of this conductor becomes 1 volt. So to create 1 volt potential on this conductor, we required 5 coulomb charge. So 5 coulomb charge is known as the capacitance of this conductor. So what will be the definition of capacitance of any conductor? The value of charges which is required to create 1 volt potential on any conductor is known as capacitance of that conductor. Okay, after that we have derived that here from here C is equal to Q upon V. This is the formula of conductor. After that we had noted some points about capacitance of the conductor. First point was that capacitance is a scalar quantity. Why the capacitance is a scalar quantity? Because to explain capacitance, it does not require the direction. Suppose to be I ask to you that what is the capacitance of this conductor. That means I am asking you to what is the capacity to store the charges of this conductor. So to explain this, to storing of charges, we does not require direction. So if we does not require the direction, then we can say that the capacitance is a scalar quantity. Okay, after that, second, the SI unit of capacitance we have found here, coulomb, and this is a potential volt. This will be coulomb per volt. So the SI unit of capacitance is coulomb per volt, and this coulomb per volt is known as farad. So SI unit of capacitance is farad, and 1 farad is equal to 1 coulomb per volt. After that, we had also defined in previous lecture that what is 1 farad. How much capacitance is called 1 farad. So we had defined that if a conductor has got a conductor on a conductor,
the potential becomes 1 volt giving 1 coulomb charges, then the capacitance of that conductor will be 1 farad, and 1 farad is not a smaller capacitance, it is very larger, bigger capacitance. In previous class I have taught about it. Okay, now third, the dimension of capacitance. In previous class I have also told about it, the dimension of capacitance. Next, point 4, in previous class I have taught you that the dependency of the capacitance. So to find the dependency of any physical quantity, we see the formula of that physical quantity. So here the capacitance C is equal to Q upon V, that is the capacitance depends on charges and potential, but the concept is that this capacitance does not depend on the charge and the potential. It is independent from the charges of the conductor and the potential of the conductor. So always remember that the charges of the conductor and the potential of the conductor does not affect the capacitance of the conductor. So which quantity, which factors affect the capacitance of the conductor? So in point 5 I have taught you that the geometry, the shape and size of the conductor affects the capacitance. The medium in which the conductor is kept affects the capacitance of the conductor, and the other conductor which is kept near to the conductor affects the capacitance of the conductor. So there are 3 factors which affects the capacitance of the conductor. First, geometry of the conductor, second, the medium, and third, the other conductor. Okay, after that we have done the capacitance of a spherical conductor in air. Suppose to be I have a spherical conductor and it is kept in the air, then how much the capacitance will be this of this conductor? So answer is that in previous class I have derived you that the capacitance of the spherical conductor in air 1 upon 4 pi epsilon naught into R. Okay, so from here we can say that the capacitance of a spherical conductor is proportionate to the radius of the conductor, and the capacitance of the conductor depends on the medium epsilon naught. This is the characteristics of the medium. Okay, after that we had also found the capacitance of the earth. Earth is a very large object, so the capacitance of the earth in previous class we have found that 0.7 millifarad, which is not 1 farad. It is very less than 1 farad, approximately 1000 times less than 1 farad. So the capacitance of our earth is not 1 farad. So we can say that 1 farad is not a small capacitance. It is the capacitance for which we required 19 lakh kilometer radius of the object. That is the very larger than the earth. So this the 1 farad capacitance is not a smaller capacitance. Okay, after that we have done 1 or 2 numericals. तो यहां तक मैंने आपको लेक्चर नंबर 21 में बताया था। अभी तक जो मैं बोल रहा था, कल जो मैंने लेक्चर नंबर 21 में आपको कॉन्सेप्ट बताया था, उन सारे कॉन्सेप्ट को मैंने अभी रिवीजन करवा दिया। अब आज के लेक्चर 22 में हम लोग 2-3 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को देखेंगे, जहां से आपका बिहार बोर्ड 2015-2017 में क्वेश्चंस पूछा हुआ है, और एक क्वेश्चन आपके ये बोर्ड पर भी है कि 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है को मिलाकर एक बड़ा ड्रॉप बनाया जाता है, तो बड़े ड्रॉप की धारिता क्या होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग कैसे बनाएंगे, और ये 1 सेकंड में 1 से 2 सेकंड में ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा यदि आपने कॉन्सेप्ट को सही से सुना तो आइए आज हम लोग इसी क्वेश्चंस को करने के लिए जो कॉन्सेप्ट हमें जरूरी है उस कॉन्सेप्ट को आज हम लोग डील करते हैं। ओके, देखिए, तो मान लीजिए कि हमारे पास पानी का बहुत ही छोटा ड्रॉप्स है। ये हमारे पास वाटर का, ये देखिए
ये वाटर का बहुत ही छोटा छोटा ड्रॉप्स है हमारे पास। ये पानी का हो सकता है, तेल का हो सकता है, पारा का हो सकता है। ये देखिए, ये बहुत ही छोटे छोटे ड्रॉप्स है हमारे पास, बूंदे हैं, बहुत ही छोटे छोटे बूंदे हैं। अब सभी ये जो छोटे छोटे बूंदे हैं, सबकी त्रिज्या एक जैसी है। यानी एक की त्रिज्या यदि r है तो दूसरे की भी त्रिज्या r है, तीसरे की भी त्रिज्या क्या है, r है। सबकी त्रिज्या एक जैसी है, तो ऐसे बूंदों को हम बोलेंगे समरूप बूंदे, आइडेंटिकल ड्रॉप्स बोलेंगे, सिमिलर ड्रॉप्स बोलेंगे, एक जैसी ड्रॉप्स बोलेंगे, समान ड्रॉप्स बोलेंगे, समान त्रिज्या वाले ड्रॉप्स बोलेंगे इसको। तो ये सभी ड्रॉप्स, जितने भी ड्रॉप्स है यहां पर, सभी ड्रॉप्स की त्रिज्या एक जैसी यानी समरूप है। अब प्रत्येक की धारिता c है, इसकी भी धारिता c, इसकी भी धारिता c, इसकी भी धारिता c। प्रत्येक ड्रॉप्स की जो धारिता है वो c है। अब हमने क्या किया, ये जितने भी ड्रॉप्स है, मान लीजिए 50 ड्रॉप्स है, इन 50 ड्रॉप्स को एक साथ मिला दिया और एक साथ मिलाकर, ये देखिए सभी ड्रॉप्स को हमने एक साथ मिला दिया और एक साथ मिलाकर हमने एक बड़ा ड्रॉप्स बना लिया। ये सारे स्मॉल ड्रॉप्स है, स्मॉल ड्रॉप्स, और ये हमारा बिग ड्रॉप्स हो गया, बिग ड्रॉप्स। ये देखिए सभी छोटे छोटे ड्रॉप्स को मिलाकर हमने एक बड़ा ड्रॉप्स बना लिया। अब इस बड़े ड्रॉप की धारिता कितनी होगी, बड़े ड्रॉप की धारिता कितनी होगी, बड़े ड्रॉप की धारिता को हम लिखेंगे सी बिग। सी बिग, सी का मतलब मैंने कल बताया था धारिता, बिग का मतलब बड़े ड्रॉप की धारिता, और ये सी क्या है, यह है किसी एक छोटे ड्रॉप की धारिता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन रहा है, सुनिए, हमारा क्वेश्चन है n छोटे छोटे समरूप बूंदे, यानी यहां पर n का मतलब 1000 2000 कुछ भी हो सकता है। n छोटे छोटे समरूप बूंदे, समरूप का मतलब प्रत्येक की त्रिज्या एक जैसी होगी, प्रत्येक समान होगा। n छोटे छोटे समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता c है, यानी सभी छोटे छोटे बूंद की जो धारिता वो c है, एक जैसा है, को मिलाकर, यानी इन सभी ड्रॉप्स, छोटे ड्रॉप्स को मिलाकर एक बड़ा ड्रॉप बनाया जाता है, एक बहुत ही बड़ा ड्रॉप बनाया जाता है। तो बड़े ड्रॉप की धारिता क्या होगी, बड़े ड्रॉप की धारिता क्या होगी, आज यही हमें ज्ञात करना है। देखिए इसका केवल आपको फॉर्मूला याद रखना है, एग्जाम में आपको केवल इस पर न्यूमेरिकल्स पूछेगा तो न्यूमेरिकल्स आपको फॉर्मूला से बन जाएगा, लेकिन कहां से आया वो चीजें उसको आज हम लोग डिटेल में देखेंगे। उसी तरह फिर क्वेश्चन नंबर 2 हम लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 हम क्या लिखेंगे, उसी तरह हम यहां क्या करेंगे, n छोटे छोटे ड्रॉप्स ले लेंगे और प्रत्येक का विभव भी ले लेंगे। देखिए अभी धारिता निकाल रहे हैं, प्रत्येक का विभव भी ले लेंगे दूसरे क्वेश्चन में, और सबको मिला देंगे तो बड़े ड्रॉप का विभव क्या होगा। उसी तरह तीसरा क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, प्रत्येक छोटे छोटे ड्रॉप्स की जो पृष्ठीय घनत्व होगा वो सिग्मा ले लेंगे और सबको मिला देंगे तो बड़े ड्रॉप का जो पृष्ठीय घनत्व होगा वो कितनी होगी, तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कि प्रत्येक छोटे छोटे ड्रॉप्स की जो एनर्जी है वो ई होगा और सबको मिला देंगे तो बड़े ड्रॉप की एनर्जी कितनी होगी। तो आज हम लोग 4 क्वेश्चंस, 4 कॉन्सेप्ट को देखेंगे और यहां से आपके पैरामेडिकल यानी पीएमटी या पीएम या फिर आपके बोर्ड में या छोटी मोटी जो कंपटीशन होता है वहां पर क्वेश्चंस पूछता है यहां से, और केवल आपको फॉर्मूला याद रखना, बट मैं आपको डिटेल में यहां पर बता रहा हूं। आइए सबसे पहले यही क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन क्या है फिर से सुनिए, n छोटे छोटे समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता c है को मिलाकर एक बड़ा ड्रॉप बनाया जाता है, तो बड़े ड्रॉप की धारिता ज्ञात करें। हमारे पास n छोटे छोटे ड्रॉप्स है, उसमें प्रत्येक की त्रिज्या समान है, त्रिज्या समान कहने का मतलब यह कैसा है, समरूप है। अब सबकी धारिता, प्रत्येक की धारिता c है, सबको मिलाकर एक बड़ा ड्रॉप बनाए तो बड़े ड्रॉप की धारिता क्या होगी। आइए सबसे पहले हम मानते हैं, माना स्मॉल ड्रॉप्स की संख्या बराबर n। ये जो छोटे छोटे स्मॉल ड्रॉप्स है उसकी संख्या n मान लेते हैं। फिर प्रत्येक छोटे ड्रॉप की त्रिज्या r मान लेते हैं, प्रत्येक
प्रत्येक स्मॉल ड्रॉप्स की त्रिज्या बराबर स्मॉल आर मान लेते हैं, स्मॉल ड्रॉप की त्रिज्या स्मॉल आर। ओके, अब प्रत्येक ड्रॉप्स की धारिता सी मान लेते हैं, प्रत्येक स्मॉल ड्रॉप्स की धारिता सी। तो ये सी क्या है, प्रत्येक यानी एक स्मॉल ड्रॉप्स की धारिता है, प्रत्येक स्मॉल ड्रॉप्स की धारिता है। अब आइए सी, इसलिए सी बराबर, तो धारिता बराबर क्या होता है, धारिता बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। कल ही आपने देखा था गोलीय चालक की धारिता क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता है। तो ये सी बराबर हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब ये सी है क्या, आंसर ये किसी एक छोटे ड्रॉप की धारिता है। तो किसी एक छोटे ड्रॉप की धारिता सी बराबर क्या निकल गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ओके, अब हमने क्या किया, अब सभी ड्रॉप्स को मिलाकर एक बड़ा ड्रॉप्स बना लिया। तो जब हम बड़ा ड्रॉप्स बनाएंगे तो बड़े ड्रॉप्स की त्रिज्या क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये छोटे ड्रॉप, प्रत्येक छोटे ड्रॉप की त्रिज्या क्या था, स्मॉल आर था। इसकी त्रिज्या तो स्मॉल आर होगी नहीं, इसकी त्रिज्या कुछ और हो जाएगी। तो मान लेते हैं कि बड़े ड्रॉप की जो त्रिज्या है वो आर हो गया, कैपिटल आर। तो मान लेते हैं माना बिग ड्रॉप की त्रिज्या, यानी बड़े ड्रॉप की त्रिज्या बराबर क्या मान लेते हैं, कैपिटल आर मान लेते हैं। तो इस बड़े ड्रॉप की जो धारिता होगी वो कितनी होगी, यानी सी बिग हमें निकालना है। सी बिग बराबर व्हाट, बड़े ड्रॉप की धारिता क्या होगी। तो अब यहां पर एक चीज आप समझिए, आपने सुना होगा आवेश संरक्षण का सिद्धांत कि आवेश नियत होता है, ये इसको हम उत्पन्न और बर्बाद नहीं कर सकते। किसी सिस्टम का कुल आवेश हमेशा कांस्टेंट होगा। उसी तरह आपने सुना होगा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कि ऊर्जा भी संरक्षित होता है, ऊर्जा को हम केवल ट्रांसफर कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। उसी तरह आज एक मैं नया चीज बताता हूं, आयतन संरक्षण का सिद्धांत। आयतन संरक्षण का सिद्धांत, किसी वस्तु का जो आयतन होता है वो भी संरक्षित होता है, यानी आयतन का न तो हम बर्बाद कर सकते हैं और न ही उसको हम उत्पन्न कर सकते हैं। यानी किसी वस्तु का आयतन जो होता है वो कांस्टेंट होता है। कैसे, सुनिए। मान लीजिए एक पहले फॉर्मल सा एग्जांपल सुनिए। मान लीजिए हमारे पास ये कोई बर्तन है, ये, अब इस बर्तन की कुछ आयतन है, कुछ वॉल्यूम है। अब इस बर्तन में 1/2 लीटर दूध आता है, 1/2 लीटर, ठीक है, इसकी वॉल्यूम 1/2 लीटर की होगी। अब हमने क्या किया, इस बर्तन को ऊपर से थोड़ा ऐसे कर, ये देखिए इस बर्तन को हमने ऐसे कर दिया, इसकी हाइट कम कर दी। अब बताइए अब इसमें कितना आएगा, आंसर है अभी भी 1/2 लीटर ही आएगा, या इससे अधिक आएगा या कम आएगा, आंसर अभी भी 1/2 लीटर आएगा। आपने क्या किया, हाइट कम कर दिया। हाइट कम कर दिया तो इसकी चौड़ाई तो बढ़ गई ना, पहले चौड़ाई इतनी कम थी, अभी चौड़ाई बढ़ गई। वॉल्यूम सेम रहेगा, डायमेंशन चेंज हो जाएगी, डायमेंशन बढ़ या घट सकती है बट वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा, आयतन सेम रहेगा। तो आयतन हमारा यहां पर क्या है, संरक्षित है। ये तो हो गया फॉर्मल सा। और इसको अंदर जाकर समझिए। आपने आप जब रूम पर रहते होंगे, रूम पर आपने ये रोटी पकाया होगा, जिसको आप क्या कहते हैं, वो ये गेहूं का रोटी आपने पकाया होगा, ब्रेड। तो वहां पर जब आप रोटी पकाते हैं तो वहां पर सबसे पहले आटा को गूंथा जाता है और एक गोला बनाया जाता है इस तरह का। ये देखिए इस तरह का गोला बनाया जाता है और इस गोला को वो पेस्ट्री बोर्ड पर, यानी चकला जिसको कहते हैं, चकला पर रखकर और पेस्ट्री रोलर से यानी बेलन से उसको क्या किया जाता है, आगे पीछे फोर्स लगाया जाता है, तब जाकर वो क्या होता है, फैलता है और फैल कर इस तरह से बन जाता है। ये देखिए, ये देखिए। अब यहां पर देखिए, यहां पर भी वॉल्यूम संरक्षित है, यहां पर भी आयतन संरक्षित है। जो आयतन गोला के रूप में था, जितना आयतन जब ये गोला था तब था, उतना ही आयतन अभी भी इस
मटेरियल के पास है, इस रोटी के पास है, क्योंकि वॉल्यूम तब इसकी चेंज होगी जब हम इसे मटेरियल को हटा देंगे, मटेरियल को यहां से निकाल लेंगे, तब इसके वॉल्यूम पर इफेक्ट पड़ेगा। हम तो इसे मटेरियल निकाल नहीं रहे हैं, उसी मटेरियल का शेप एंड साइज चेंज कर रहे हैं, तो शेप एंड साइज चेंज करने से वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। याद रखिएगा इस चीज को, यानी आयतन क्या होता है, कुल मिलाकर संरक्षित होता है, किसी वस्तु का आयतन संरक्षित होता है। मान लीजिए हमने छोटे छोटे ये छोटे छोटे ये छोटे छोटे ये छोटे छोटे ये आटे का बहुत सारा ये गोला बना हुआ, छोटा छोटा गोलियां बना हुआ है, अब सबको हमने इकट्ठा मिला दिया, तो आयतन क्या होगी, उतना ही होगा जितना पहले सबका आयतन था, उतना ही अब भी सबका आयतन होगा। उसी तरह यहाँ पर n छोटे छोटे ड्रॉप्स था, छोटे छोटे n छोटे छोटे ड्रॉप्स था, अब सभी ड्रॉप्स का जो आयतन होगा वो किसके आयतन के बराबर होगा, इस बड़े ड्रॉप के आयतन के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि इन n छोटे छोटे ड्रॉप्स को हमने क्या किया, आपस में मिला दिया, तो आपस में मिला दिया, जो सबका आयतन होगा वो तो रहेगा ही, भले त्रिज्या चेंज हो जाए, लेकिन बड़े की त्रिज्या चेंज हो जाए, लेकिन जो तमाम छोटे का आयतन है वो बड़े के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। आयतन संरक्षित होता है, और यहां पर आप बोल सकते हैं द्रव्यमान भी संरक्षित होता है, द्रव्यमान भी संरक्षित होगा। कैसे, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 जो गोलियां हैं, या फिर ऐसे माने ये जो गोला है, जो गुल्ला आपने बनाया था रोटी बेलने के लिए, उसका जो द्रव्यमान होगा वही द्रव्यमान किसकी होगी, रोटी की भी होगी, वही मासेस रोटी की भी होगी। आप उसको पकने के बाद नहीं, क्योंकि पकने के बाद तो आप जब हीट दोगे तो हीट से उसमें जो वाटर है वो वाष्प बनकर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, तो उसकी ये जो है मांस उसका कम जाएगा, तो वो तो हो गया कि आपने मांस उससे निकाल दिया। जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में आप इसकी फॉर्मेट चेंज कीजिए, शेप चेंज कीजिए, तो मास क्या होगा, बराबर होगा। खैर हम इतना नहीं चाहिए, आपको बस यही समझाना है कि किसी वस्तु का जो आयतन होता है वो संरक्षित होता है, यानी n छोटे छोटे ड्रॉप्स को मिलाकर हम जब एक बड़ा ड्रॉप बनाएंगे तो इस बड़े ड्रॉप का जो आयतन होगा ये तमाम n छोटे ड्रॉप्स के आयतन के बराबर होगा। तो हम लोग यहां लिखेंगे आयतन संरक्षण के सिद्धांत से, आयतन संरक्षण के सिद्धांत से, आयतन संरक्षण के सिद्धांत से। आइए आयतन संरक्षण के सिद्धांत से हम लोग क्या लिखेंगे, बड़े ड्रॉप का आयतन बराबर सभी n छोटे ड्रॉप्स का आयतन, बड़े ड्रॉप का आयतन बराबर सभी n छोटे ड्रॉप्स का आयतन। ओके, अब यहां से हम लोग चलेंगे, कैलकुलेशन करते हुए चलेंगे। आइए तो बड़े ड्रॉप का आयतन, बड़े ड्रॉप के आयतन को हम क्या बोल देंगे, बड़े ड्रॉप के आयतन को हम बोलेंगे भी, आयतन को भी से, यार रहने दीजिए इसको भी। बड़े ड्रॉप का आयतन, बड़ा ड्रॉप क्या है, गोला है, और गोला का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। बड़े ड्रॉप की त्रिज्या r है तो यहां कैपिटल R का क्यूब हो जाएगा, बराबर है तो बराबर सभी n छोटे ड्रॉप्स का आयतन। तो आप पहले एक छोटे ड्रॉप का आयतन निकालिए। देखिए ये छोटा ड्रॉप है और ड्रॉप किसके रूप में, गोला के रूप में, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, स्मॉल r का क्यूब होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर इस छोटी ड्रॉप की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r, तो ये 4/3 पाई r क्यूब ये किसका आयतन है, एक छोटे गोले का आयतन है, एक छोटे ड्रॉप का आयतन है, और छोटा ड्रॉप है कितना n, तो इसको किससे गुना कर देंगे, n से गुना कर देंगे। ये देखिए ये हो गया बड़े ड्रॉप का आयतन बराबर सभी n छोटे ड्रॉप का आयतन। 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा r, और ये क्यूब है इधर आएगा, ये देखिए ये n, ये r क्यूब है, और ये क्यूब इधर आएगा तो पावर कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। स्क्वायर रहता तो पावर इधर आता तो 1/2 होता है, यहां पर r क्यूब है, क्यूब को इधर भेजेंगे तो पावर 1/3 हो जाएगा। तो यहां से आप निकालिए r बराबर, देखिए n पर पावर 1/3,
n पर पावर 1/3 और r पर पावर 3 पर पावर 1/3 है, तो 3 3 कैंसिल, तो r पर पावर क्या होगा 1। यानी ये देखिए ये क्या निकल गया, r बराबर n टू द पावर 1/3 इंटू स्मॉल r। ये क्या निकला है आंसर, ये बड़े ड्रॉप की त्रिज्या निकला है। तो बड़े ड्रॉप की त्रिज्या अब हमारे पास आ गया। अब बड़े ड्रॉप की हम क्या निकालेंगे, धारिता निकालेंगे। तो आइए बड़े ड्रॉप की धारिता, बड़े ड्रॉप की धारिता, धारिता आप किसे लिखते हैं, सी बिग। बड़े ड्रॉप की धारिता सी बिग। अब धारिता बराबर, तो बड़ा ड्रॉप क्या है, गोला है, और गोलीय चालक की यानी गोले की धारिता मैंने कल के लेक्चर में बताया था, कितना आया था 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर। और ये कैपिटल आर लेंगे, क्यों, क्योंकि बड़े ड्रॉप की धारिता निकाले तो बड़े ड्रॉप की त्रिज्या कितनी है, आर, तो आर। ओके, इसको करते जाइए। सी बिग बराबर हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन, और ये आर बड़े ड्रॉप की त्रिज्या कितना निकाले, आर बराबर n पर पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। ओके, सी बिग बराबर हमारे पास हो जाएगा, कर लीजिए। ये देखिए n पर पावर 1/3, देखिए हमने पहले क्या लिखा दिया, लिख दिया n पर पावर 1/3। अब क्या बचा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर। इसीलिए सी बिग बड़े ड्रॉप की धारिता n पर पावर 1/3 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर, ये किसके बराबर है, c के बराबर है। तो इस पूरे को हम c लिख देते हैं। ये देखिए, तो बड़े ड्रॉप की धारिता क्या हो गया, n पर पावर 1/3 बटा c क्या है, किसी एक छोटे ड्रॉप की धारिता है। अब ये n क्या है, आंसर छोटे छोटे ड्रॉप्स की संख्या है। अब कोई भी इस तरह का फॉर्मूला आपको, इस तरह का क्वेश्चन आपको रहे कि ड्रॉप्स की संख्या दे दे और प्रत्येक ड्रॉप की धारिता दे दे, तो अब सबको मिलाकर एक बड़ा ड्रॉप बनाया जाएगा, तो बड़े ड्रॉप की धारिता हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ओके, अब आइए इस क्वेश्चन को डील करते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ, ये देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को मैं डील कर रहा हूं। क्वेश्चन कहता है कि 64 समरूप ड्रॉप्स, यानी समरूप ड्रॉप्स कितना है, 64 है, यानी 64 छोटे छोटे ड्रॉप्स है, प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है। तो 64 समरूप छोटे छोटे ड्रॉप्स है, 64 समरूप छोटे छोटे ड्रॉप्स कहने का मतलब n की संख्या कितनी होगी, 64 हो गई। n की संख्या 64 हो गई ड्रॉप्स की संख्या, और प्रत्येक ड्रॉप्स की धारिता 5 माइक्रोफैराड, यानी c बराबर कितना दे दिया गया, 5 माइक्रोफैराड दे दिया गया। कहता है सबको मिलाकर एक बड़ा ड्रॉप्स बनाया जाता है, तो बड़े ड्रॉप्स की धारिता क्या होगी, क्या पूछ रहा है, सी बिग पूछ रहा है, यानी बड़े ड्रॉप की धारिता सी बिग हमसे पूछ रहा है। तो हमको पता है चूंकि बड़े ड्रॉप की धारिता सी बिग बराबर क्या होता है, n पर पावर 1/3 इंटू सी। ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। ओके, अब यहां से इसको डील करते हैं। n का मान कितना है, n का मान है 64, तो n की जगह 64 पर पावर 1/3 गुना c का मान कितना है 5 माइक्रोफैराड। देखिए 64 को लिख सकते हैं 4 पर पावर 3, लिख सकते हैं 64 को 4 पर पावर 3, क्योंकि 4 चौक 16 चौक 64, और पावर कितना है, टोटल पावर कितना है 1/3 गुना 5 माइक्रोफैराड। अब देखिए ये 3 और ये 3 कैंसिल, कितना बचा 4, और 4 गुना 5 कितना हो गया 20 माइक्रोफैराड। यह आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इस तरह का यदि सवाल पूछे, आपको ड्रॉप्स की संख्या दे दे और प्रत्येक ड्रॉप्स की धारिता दे दे, तो हम बड़े ड्रॉप की धारिता क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आपको केवल ये फॉर्मूला याद रखना, n टू द पावर 1/3 इंटू सी याद रखना। ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, मान लीजिए कि 64 की जगह आपको 27 दे दिया गया, 27 दे दिया गया और ऑप्शन भी चेंज कर दिया गया, बताइए तब क्या होगा। तो 64 की जगह 27 दे दिया गया, तो हम भी 64 की जगह क्या दे देंगे 27। तो 27 पर 1/3 कितना हो जाएगा, 27 को लिख सकते हैं ये 3 पर पावर 3 यानी 3 हो जाएगा, और 5 का कितना हो जाएगा 15 माइक्रोफैराड हो जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो आप ये याद रखिए, बड़े ड्रॉप की जो धारिता होगा n टू द पावर 1/3 इंटू सी हो जाएगा। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए।
इसका पीडीएफ बनाकर मैं भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। अच्छा, आपको लगता होगा कि 64 ड्रॉप्स था और एक की धारिता 5 माइक्रोफैराड थी, तो 64 की कितनी होगी? 64 गुना 5 कर देते हैं। नहीं भाई, 64 गुना 5 की जगह तो वो क्या हो जाएगी आपकी? गलत हो जाएगी, क्योंकि जब हम सबको मिलाएंगे तो उसकी जो रेडियस है सबके तुलना में थोड़ा सा डिक्रीज हो जाए, और डिक्रीज होगा तो उसकी कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगी? टोटल समतुल्य कैपेसिटेंस भी डिक्रीज हो जाएगी। ओके, अब इसी क्वेश्चन को देखिए मैं कैसे बनाता हूं। देखिए तो अब मैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 कर देता हूं। ये तो धारिता था, और यहां पर धारिता को मिटाकर मैं विभव कर देता हूं। विभव सी को मिटाकर मैं भी कर देता हूं, और यहां धारिता को मिटाकर मैं विभव कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या बन रहा है। क्वेश्चन बन रहा है एन छोटे छोटे समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक का विभव भी है को मिलाकर एक बड़ा ड्रॉप बनाया जाता है, तो बड़े ड्रॉप का विभव ज्ञात करें। अब हमने धारिता को हटा दिया, अब हमें विभव ज्ञात करना है। बड़े ड्रॉप का विभव कितनी होगी ये हमें फाइंड करनी है। तो देखिए बड़े ड्रॉप का विभव कितना होगा। आइए तो प्रत्येक छोटे ड्रॉप्स का जो विभव है ये कितना दे दिया गया? भी। कितना दे दिया गया? भी दे दिया गया। और समरूप है तो प्रत्येक की त्रिज्या कितनी होगी? आर होगी। देखिए तो यहां से हम लोग फिर से कैसे करते हैं, यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? माना स्मॉल ड्रॉप्स की संख्या n है, प्रत्येक स्मॉल ड्रॉप्स की त्रिज्या r है, ठीक। उसके बाद देखें प्रत्येक स्मॉल ड्रॉप्स पर आवेश बराबर क्या लिख लेते हैं? Q। मान लेते हैं सब पर Q चार्ज है, इस पर भी Q चार्ज, इस पर भी Q चार्ज, सब पर Q चार्ज है। अब प्रत्येक स्मॉल ड्रॉप का विभव मान लेते हैं। प्रत्येक स्मॉल ड्रॉप्स का विभव कितना मान लेते हैं? भी मान लेते हैं। अब भी बराबर निकाल लीजिए, इसलिए भी बराबर आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा? तो देखिए प्रत्येक स्मॉल ड्रॉप्स का विभव यानी एक स्मॉल ड्रॉप का विभव भी है, और ड्रॉप गोला के रूप में, और गोला का विभव कितना होता है? 1/4 पाई F0 Q/r। त्रिज्या कितनी? स्मॉल r, तो ये स्मॉल r, इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो ये भी क्या है? किसी एक स्मॉल ड्रॉप का विभव है। आगे बढ़िए, अब सबको मिलाकर हमने क्या बना लिया? एक बिग ड्रॉप बना लिया। तो जब हम बिग ड्रॉप बनाएंगे तो बिग ड्रॉप की त्रिज्या हमने कितना मान लिया? r मान लिया। तो मान लेते हैं, माना बड़े ड्रॉप की त्रिज्या कितनी है? कैपिटल R है। ओके, अब एक ड्रॉप पर Q चार्ज था और सब ड्रॉप को हमने मिला दिया, तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा? Q से बढ़ जाएगा। मान लेते हैं बड़े ड्रॉप का चार्ज कितना हो गया? कैपिटल Q हो गया। तो बड़े ड्रॉप पर आवेश कितना मान लेते हैं? कैपिटल Q मान लेते हैं। तो अब बड़े ड्रॉप का विभव कितना होगा? यानी भी मतलब विभव, बी का मतलब बड़े ड्रॉप का विभव कितना होगा? यानी हमें क्या ज्ञात करना है? भी बिग ज्ञात करना है। भी बिग कितना होगा? अब यहां से थोड़ी देर के लिए हम लोग आते हैं, देखिए आवेश संरक्षण के सिद्धांत से। आवेश संरक्षण के नियम से। आवेश संरक्षण का नियम क्या है? कि किसी भी निकाय का जो कुल आवेश होगा वो हमेशा नियत होगा। तो पहले ये देखिए, ये n छोटे छोटे ड्रॉप्स, प्रत्येक पर कितना आवेश था? Q Q Q Q Q, और सबको मिलाकर जब हम एक बड़ा ड्रॉप बनाएंगे तो अभी भी इसका आवेश कितना होगा? उतना ही होगा जितना सबके पास होगा। मान लीजिए 10 आदमी है, एक के पास 10 रुपया, एक के पास 10 रुपया, एक के पास 10 रुपया, एक के पास 10 रुपया है, ठीक है। अब टोटल रुपया कितना हो गया? 100 हो गया, ठीक।
अब सभी 10 आदमी को हमने एक कमरा में बंद कर दिया। अब मैं बोलूंगा इस पूरे कमरे में जो आदमी है उसके पास कितना रुपया है? भाई जितना पहले सबके पास था उतना ही ना अब भी सबके पास होगा, क्योंकि बैलेंस कांस्टेंट है। उसी तरह मैंने बोला कि आवेश संरक्षित होता है, पहले सबके पास जितना चार्ज था तो अभी भी सबके पास उतना ही चार्ज होगा। यानी पहले सबके पास कितना चार्ज था? पहले सबके पास NQ चार्ज था। पहले एक के पास Q चार्ज था तो टोटल N है, तो पहले सबके पास कितना चार्ज था? NQ चार्ज था। नहीं समझ आया? एक के पास Q चार्ज था तो टोटल ड्रॉप्स है कितना? N, तो पहले सबके पास NQ चार्ज था। अब सबको मिलाते तो अब इसका चार्ज कितना है? Q है, लेकिन ये किसके बराबर होगा? आवेश संरक्षण के सिद्धांत से ये Q NQ के बराबर होगा। ये समझ आ गया आपको? तो Q बराबर क्या हो जाएगा? NQ हो जाएगा। ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत से। अब आयतन संरक्षण के सिद्धांत से आइए। आयतन संरक्षण के नियम से, फिर से आयतन संरक्षण का नियम क्या कहता है कि इन तमाम बड़े ड्रॉप का जो वॉल्यूम होगा सभी n छोटे ड्रॉप के वॉल्यूम आयतन के बराबर होगा। अभी जस्ट मैंने बताया, तो यहां पर लिखेंगे बड़े ड्रॉप का आयतन बराबर सभी n छोटे ड्रॉप्स का आयतन। यानी बड़े ड्रॉप का जो आयतन होगा सभी छोटे n ड्रॉप्स के आयतन के बराबर होगा। अब कर लीजिए बड़े ड्रॉप का आयतन, तो बड़ा ड्रॉप यह है और ये गोला के रूप में, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। त्रिज्या कैपिटल R है तो कैपिटल R का क्यूब बराबर सभी n छोटे ड्रॉप्स का आयतन। तो पहले एक छोटे ड्रॉप्स का आयतन, तो एक छोटा ड्रॉप गोला है, गोला का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई r क्यूब। तो त्रिज्या स्मॉल r है तो स्मॉल r का क्यूब। अब n है, ये तो हो गया एक छोटे ड्रॉप्स का, तो छोटे ड्रॉप्स n है तो n से गुना कर दें। देखिए 1/4, ये 4/3 पाई कैंसल, तो r बराबर यहां से फिर से क्या हो जाएगा? r क्यूब है, इधर आएगा तो यह जाएगा n, ये r पर पावर 3, और ये r क्यूब है, क्यूब इधर आएगा क्या हो जाएगा? पावर 1/3 हो जाएगा पावर। ओके, अब देखिए तो r बराबर, इसीलिए r बराबर हमारे पास हो जाएगा, देख n पर पावर 1/3, n टू दी पावर 1/3, और r पर पावर 3 पर पावर 1/3, 3 कैंसिल तो क्या बचेगा? r। ये देखिए r, ये किसकी वैल्यू निकल गई? ये कैपिटल R, यानी बड़े ड्रॉप की त्रिज्या निकल गई। अब बड़े ड्रॉप की त्रिज्या निकल गई तो हमारे पास अब इसका विभव भी निकल जाएगा। अब लिखेंगे बड़े ड्रॉप का विभव, बड़े ड्रॉप का विभव, तो बड़े ड्रॉप का विभव क्या हो जाएगा? VB। अब आप यहां से सोचिए, बड़ा ड्रॉप अपने आप में क्या है? गोला है, और गोला का विभव कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q। तो बड़े ड्रॉप पर चार्ज कितना है? कैपिटल Q अपॉन R। तो बड़े ड्रॉप की त्रिज्या कितनी है? R है, तो R। ये देखिए ये बड़े ड्रॉप का विभव हो गया। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q, कैपिटल Q। तो कैपिटल Q किसके बराबर है? NQ के बराबर है, स्मॉल NQ। तो कैपिटल Q की जगह NQ बटा R। ये देखिए ये कैपिटल R किसके बराबर है? ये R के बराबर है n पर पावर 1/3 इंटू स्मॉल r। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q को पहले लिख दीजिए और ये R को पहले लिख दीजिए। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटा R। अब इधर क्या बच गया? इधर बच गया ये n बच गया, और नीचे क्या बच गया? n पर पावर 1/3 बच गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R। इसको देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटा स्मॉल r किसके बराबर है? V के बराबर। तो इसको हम V लिख देते हैं, V। अब यहां पर कुछ पावर नहीं तो क्या है? 1 है, तो यहां पर n पर पावर 1, और ये n पर पावर 1/3 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? n पर पावर -1/3 हो जाएगा। इसीलिए आप लिख सकते हैं V बिग, यानी बड़े गोले ड्रॉप का विभव बराबर हो जाएगा। देखिए एक आधार n आधार समान है तो पावर जुट जाएगा।
अब एक में 1/3 को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2/3। ये देखिए एक में 1/3 को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखिए 3, ये हो जाएगा 3 - 1 2/3। तो ये n पर पावर हो जाएगा 2/3 और ये भी, ये देखिए ये हो गया बड़े ड्रॉप का विभव पोटेंशियल हो गया। तो याद रखिएगा, यदि n समरूप छोटे छोटे ड्रॉप्स में प्रत्येक का विभव भी हो और सबको मिलाकर जब एक बड़ा ड्रॉप बनाया जाएगा तो बड़े ड्रॉप का जो विभव होगा वो कितना आ जाएगा n पर पावर 2/3 इंटू v। धारिता कितना आया था, n पर पावर 1/3 c आया था, n पर पावर 1/3 इंटू c करके आया था। जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन रहेगा कि हमारे पास 64 छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं, 64 छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं, तो n का मान कितना हो गया 64, जिसमें प्रत्येक का विभव 8 वोल्ट है, यानी v बराबर कितना दे दिया गया 8 वोल्ट दे दिया गया। अब सबको मिलाकर एक बड़ा ड्रॉप बनाया जाता है, तो बड़े ड्रॉप का जो विभव होगा v बिग वो कितना होगा, v बिग बराबर y। तो हमारे पास फॉर्मूला है बड़े ड्रॉप का विभव v बिग बराबर फॉर्मूला, v बिग बराबर हमारे पास क्या होता है, v बिग बराबर होता है n पर पावर 2/3 इंटू v। अब ये देखिए n का मान कितना है 64, तो 64 पर पावर 2/3 गुना v का मान कितना है 8। अब 64 पर पावर 2/3, तो 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 64 को लिख सकते हैं 4 पर पावर 3 लिख सकते हैं, और उस पर पावर 2/3 है, इस पर पावर 2/3 है गुना 8। अब आप देखिए ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या ऊपर पर पावर 2, तो 4 पर पावर 2 कितना हो जाएगा 16 और ये 8। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ये 8 48 4, ये 8 करता 12 128, ये देखिए 128 वोल्ट हो जाएगा, बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल हो जाएगा। तो आप इसको याद रखिएगा, यदि n छोटे ड्रॉप्स जिसमें प्रत्येक का n छोटे समरूप ड्रॉप जिसमें प्रत्येक का विभव 8 वोल्ट हो और वो ड्रॉप्स की संख्या 64 हो, तो सबको मिलाकर जब एक बड़ा ड्रॉप्स बनाएंगे तो बड़े ड्रॉप्स का जो पोटेंशियल होगा वो 128 हो जाएगा। तो आप इसको याद रखिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस फॉर्मूला याद रखना है। ओके, अब क्वेश्चन नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन देखिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा क्वेश्चन, n छोटे समरूप बूंदे जिसमें प्रत्येक का विभव, अब विभव को मैं हटा देता हूं, प्रत्येक पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा है, प्रत्येक पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा है, को मिलाकर एक बड़ा ड्रॉप बनाया जाता है। तो बड़े ड्रॉप के पृष्ठीय घनत्व ज्ञात करें। अब देखिए ये भी सेम इसी तरह होगा, कहता है n छोटे छोटे समरूप ड्रॉप्स है, एक पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा है। मैंने बताया था आवेश के पृष्ठीय घनत्व को सिग्मा से सूचित करते हैं, और सिग्मा बराबर होता है Q बटा क्षेत्रफल, Q बटा S होता है। तो प्रत्येक का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा है, सबको मिलाकर एक बड़ा ड्रॉप्स बनाएंगे तो बड़े ड्रॉप्स का पृष्ठीय घनत्व कितना होगा ये पूछ रहा है। तो आइए इसको भी हम लोग इसी तरीका से डील करते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूं, देखिए सब चीज वही होगा, ये छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं, प्रत्येक का पृष्ठीय घनत्व कितना सिग्मा, इसका भी सिग्मा, इसका भी कितना है सिग्मा। तो भाषा वही होगी, माना स्मॉल ड्रॉप्स की संख्या n, प्रत्येक स्मॉल ड्रॉप की त्रिज्या r क्योंकि सब समरूप है, प्रत्येक स्मॉल ड्रॉप पर आवेश स्मॉल q है, सब पर स्मॉल q है। अब यहां थोड़ा सा चेंजिंग होगा, यहां थोड़ा सा क्या चेंजिंग हुआ देखिए, यहां लिखेंगे प्रत्येक स्मॉल
ड्रॉप्स पर पृष्ठीय घनत्व बराबर क्या लेते हैं, सिग्मा। अब सिग्मा बराबर क्या होगा, इसलिए सिग्मा बराबर, सिग्मा क्या है, एक ड्रॉप्स का पृष्ठीय घनत्व। अब सिग्मा बराबर होता है क्यू बटा एस क्षेत्रफल। तो क्यू बटा एस क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, छोटे ड्रॉप्स का। छोटे ड्रॉप्स क्या है, गोला, और गोला का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या स्मॉल आर है, स्मॉल आर का स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए, ये हो गया एक छोटे ड्रॉप्स का पृष्ठीय घनत्व। अब सबको मिलाकर एक बड़ा ड्रॉप्स बनाया गया। ये देखिए, सबको मिलाकर एक बड़ा ड्रॉप्स बना दिया गया है। तो मान लेते हैं बड़े ड्रॉप्स की त्रिज्या, माना बड़े ड्रॉप की त्रिज्या बराबर कैपिटल आर, और बड़े ड्रॉप पर आवेश कितना है, कैपिटल क्यू। बड़े ड्रॉप पर आवेश बराबर कैपिटल क्यू ले लेते हैं। अब हमें क्या ज्ञात करनी है, बड़े ड्रॉप की जो पृष्ठीय घनत्व है सिग्मा बिग, यानी बड़े ड्रॉप का पृष्ठीय घनत्व ज्ञात करना, यानी सिग्मा बिग हमें ज्ञात करना। ये सिग्मा बिग इक्वल टू व्हाट, फिर से हम आएंगे किसके, आवेश संरक्षण के सिद्धांत से। वही बात, जो सबका चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा, बड़े ड्रॉप के चार्ज के बराबर होगा, क्योंकि आवेश संरक्षित होता है। क्योंकि इसी सबको मिलाकर बड़ा बनाए, बड़ा का चार्ज क्यू है तो क्यू किसके बराबर होगा, इन तमाम के चार्ज के बराबर होगा। एक का चार्ज क्यू है तो एन का चार्ज क्या होगा, एन क्यू। तो एन क्यू किसके बराबर होगा, क्यू के बराबर, किससे, आवेश संरक्षण के नियम से। उसी तरह आयतन संरक्षण के नियम से, जो बड़े ड्रॉप का आयतन होगा वो सभी छोटे ड्रॉप्स के आयतन के बराबर होगा। तो इस तरह से हम लोग आएंगे तो यहां पर हमें त्रिज्या निकल जाएगा, कैपिटल आर निकल जाएगा। तो ये कैपिटल आर किसकी त्रिज्या है, बड़े ड्रॉप्स की त्रिज्या है। अब बड़े ड्रॉप का हम क्या ज्ञात कर लेंगे, पृष्ठीय घनत्व तो ज्ञात कर लेंगे। लिखेंगे बड़े ड्रॉप का पृष्ठीय घनत्व। तो बड़े ड्रॉप के पृष्ठीय घनत्व को हम किससे लिखेंगे, सिग्मा बिग से, सिग्मा बिग। तो पृष्ठीय घनत्व बराबर होता है चार्ज आवेश बट्टा क्षेत्रफल। तो आवेश कितना है, कैपिटल क्यू, तो कैपिटल क्यू बट्टा क्षेत्रफल। तो इस बड़े ड्रॉप का क्षेत्रफल कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये गोला है और आर की जगह कौन होगा, कैपिटल आर का स्क्वायर। ये हो जाएगा। अब आइए इसको कैलकुलेट करते चलिए। क्यू किसके बराबर होगा, एन क्यू के बराबर। यहां पर एन क्यू दिस इज 4 पाई कैपिटल आर, ये कैपिटल आर किसके बराबर है, एन पर पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर, और पर पावर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर। देखिए ये हो जाएगा, ये एन क्यू बट्टा 4 पाई, और ये आर है तो आर का स्क्वायर हो जाए, और ये एन पर पावर 1 ये देखिए एन पर पावर 1/3 पर पावर 2 है तो 1/3 गुना 2 क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अब आप इसको गौर से देखिए, ये हो जाएगा क्यू बट्टा 4 पाई आर स्क्वायर। इधर क्या बचेगा, एन, और नीचे क्या बचेगा, एन पर पावर 2/3। अब यहां पर आप देखिए क्यू बट्टा 4 पाई आर स्क्वायर, क्यू बट्टा 4 पाई आर स्क्वायर किसके बराबर है, सिग्मा के बराबर। तो इसके बदले हम लोग लिख देते हैं सिग्मा गुना एन गुना, ये देखिए 2/3 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, -2/3। अब इस एन पर कुछ पावर नहीं तो 1, इसलिए सिग्मा बिग यानी बड़े ड्रॉप का जो पृष्ठीय घनत्व है वो कितना होगा, ये देखिए 1 में -2/3 को जोड़ेंगे, 1 में -2/3 को जोड़ेंगे, ये क्या होगा 3 -2 बराबर 1/3। तो ये हो जाएगा n पर पावर 1/3 और ये सिग्मा। ये देखिए, यानी n छोटे छोटे समरूप बूंदे जिसमें प्रत्येक का पृष्ठीय घनत्व तो सिग्मा हो को मिलाकर एक बड़ा ड्रॉप बनाया जाएगा। तो बड़े ड्रॉप की जो पृष्ठीय घनत्व होगा वो कितना होगा, n⁻⁴ इंटू सिग्मा, यानी धारिता की तरह होगी। बड़े ड्रॉप की धारिता क्या था, सी बी बराबर था n पर पावर 1/3 इंटू सी। उसी तरह बड़े ड्रॉप का पृष्ठीय घनत्व क्या होगा, n पर पावर 1/3 इंटू सिग्मा। यानी यहां सिग्मा है तो यहां सिग्मा, यहां सी है धारिता तो यहां भी धारिता हो जाएगा। विभव में थोड़ा सा चेंज होता है, विभव में होगा n पर पावर 2/3 इंटू विभव हो जाएगा। तो आप याद रखें इन चीजों को, ओके। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। एक लास्ट चौथा क्वेश्चन,
देखिए इसका फॉर्मूला ही आप याद रखिए, डेरिवेशन आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, फॉर्मूला पर क्वेश्चंस पूछेगा, न्यूमेरिकल्स पूछेगा। अब हमने क्या किया, आवेश के पृष्ठीय घनत्व को यहां से हटा दिया, एन छोटे छोटे ड्रॉप्स, प्रत्येक की ऊर्जा E है, को मिलाकर एक बड़ा ड्रॉप बनाया जाता है। तो बड़े ड्रॉप की ऊर्जा क्या होगा, बड़े ड्रॉप की ऊर्जा ज्ञात करें। ये देखिए अब हम लोग एनर्जी ज्ञात करेंगे। ये एन छोटे छोटे ड्रॉप्स है जिसमें प्रत्येक की ऊर्जा, एक की ऊर्जा E, दूसरे की भी ऊर्जा E, सबकी ऊर्जा E है, प्रत्येक की त्रिज्या R है, प्रत्येक पर Q आवेश है, सबको मिलाकर एक बड़ा ड्रॉप बनाया गया। कहता है बड़े ड्रॉप की ऊर्जा क्या होगा, यानी E बिग, बड़े ड्रॉप की ऊर्जा क्या होगी। सेम इसी तरह आएंगे, क्या लिखेंगे, स्मॉल ड्रॉप्स की संख्या N, प्रत्येक स्मॉल ड्रॉप्स की त्रिज्या R, प्रत्येक स्मॉल ड्रॉप पर आवेश Q, प्रत्येक स्मॉल ड्रॉप पर, ये आप प्रत्येक स्मॉल ड्रॉप की हम क्या ले लेंगे यहां पर ऊर्जा, प्रत्येक स्मॉल ड्रॉप की ऊर्जा, तो ऊर्जा बराबर हम क्या लिख देंगे E। अब प्रत्येक स्मॉल ड्रॉप की ऊर्जा आप लिख E बराबर, तो ये केवल आपको अभी याद रखना है क्योंकि ये आगे जाकर मैं पढ़ाऊंगा कि जो हमारी कैपेसिटर होती है, कंडक्टर होती है, उसकी जो ऊर्जा होती है वो होता है Q²/2C, Q²/2C। मैं इसको प्रूव करूंगा जब मैं कैपेसिटर पढ़ाऊंगा। बस अभी याद रखना है कि जो हमारा कंडक्टर होगा उसकी एनर्जी कितनी होगी, Q²/2C होगा। ओके, तो ये E बराबर Q²/2C, ये क्या है, आंसर है ये है किसी एक छोटे ड्रॉप की ऊर्जा है। अब सबको मिलाकर हमें एक बड़ा ड्रॉप बनाया गया। अब माना बड़े ड्रॉप की त्रिज्या कितनी मान लेते हैं, कैपिटल R मान लेते हैं, बड़े ड्रॉप पर आवेश कितना मान लेते हैं, कैपिटल Q मान लेते हैं। अब हमें क्या ज्ञात करनी है, बड़े ड्रॉप की ऊर्जा ज्ञात करनी है। यानी सभी छोटे ड्रॉप्स जिस पर QQ, जिसकी त्रिज्या RR, जिस पर आवेश E था, सबको मिलाकर एक बड़ा ड्रॉप्स बनाए, तो बड़े ड्रॉप्स की एनर्जी कितनी होगी ये पूछ रहा है। तो आवेश संरक्षण के नियम से क्या होगा, तो बड़े ड्रॉप्स का आवेश बराबर सभी छोटे ड्रॉप्स का आयतन। बड़े ड्रॉप का आयतन कितना है, कैपिटल Q, सभी छोटे ड्रॉप्स का आयतन कितना, सॉरी बड़े ड्रॉप का चार्ज कितना है, कैपिटल Q, सभी छोटे ड्रॉप्स का आवेश कितना है, NQ। तो आवेश संरक्षण के नियम से कैपिटल Q किसके बराबर, NQ के बराबर। और फिर से आयतन संरक्षण के नियम से जाएंगे। आयतन संरक्षण के नियम से क्या होगा कि बड़े ड्रॉप का जो आयतन है सभी n छोटे ड्रॉप्स के आयतन के बराबर होगा। तो यहां से हम लोग चलेंगे तो r बराबर क्या आ जाएगा, n पर पावर 1/3 इंटू स्मॉल r आ जाएगा। अब यहां से हमें चेंज करना है। ओके, अब लिखना है बड़े ड्रॉप की ऊर्जा EB। अब ऊर्जा बराबर होता है Q²/2C। तो बड़े ड्रॉप का चार्ज कितना है, कैपिटल Q, ये कैपिटल Q का स्क्वायर अपॉन 2C। ये C किसका धारिता है, बड़े ड्रॉप की, याद रखिएगा। ये C किसकी धारिता है, छोटे ड्रॉप की। अब आइए Q², Q की जगह क्या दे देंगे, NQ, ये हो जाएगा NQ और स्क्वायर है तो स्क्वायर बटा 2, और C क्या है, धारिता किसकी, बड़े ड्रॉप की। और बड़े ड्रॉप की धारिता बराबर क्या होता है, 4πε0 इंटू R। तो बड़े ड्रॉप की त्रिज्या R है तो यहां पर R। ये देखिए C के बदले हमने दिया 4πε0R, कल हमने बताया था गोले की धारिता होती है हवा में। करते चलिए, ये हो जाएगा QS, ये N², Q², या इसको इसे थोड़ा सा अच्छा से लिखिए। यहां पर हम Q² को इधर लिख देते हैं बटा ये 2/4πε0। देखिए Q² और N² छूट गया, N², नीचे क्या है 2 है, ये क्या है 4πε0 गुना R। इस R की जगह क्या दे दे, ये देखिए n पर पावर 1/3 इंटू स्मॉल r, n पर पावर 1/3 इंटू स्मॉल r। ओके, कैलकुलेट कीजिए, यह हो जाएगा Q² बटा 2 गुना 4πε0 और ये स्मॉल r। अब ऊपर क्या बचा, आंसर ऊपर बचा N², नीचे क्या बचा, n पर पावर 1/3। अब ये देखिए, अब यहां से 2 को छोड़ दीजिए, मैं इस 2 को अभी मैं नहीं बोल रहा हूं देखने के लिए।
अब केवल इसको देखिए, क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये क्या है, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये धारिता है किसकी, छोटे ड्रॉप्स की, इस छोटे ड्रॉप्स की, क्योंकि छोटे ड्रॉप्स की मैं बोलूंगा धारिता, तो धारिता बराबर क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, किसकी त्रिज्या के स्मॉल आर, तो देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर किसकी धारिता है, छोटे ड्रॉप्स की धारिता है। तो यहां पर मैं क्यू स्क्वायर, ओके, ये क्यू स्क्वायर है और ये क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये सी है, छोटे ड्रॉप की धारिता है, और यहाँ पर ऑलरेडी 2 था, तो यहाँ पर मैं 2 दे देता हूं, ये क्या हो गया क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, ये n पर पावर 2 और ये n पर पावर 1 अपॉन 3 ऊपर जाएगा, तो n पर पावर -1 अपॉन 3, इसीलिए ये ई बी बड़े ड्रॉप की एनर्जी क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c क्या है, एक छोटे ड्रॉप की एनर्जी ई, तो इसको ई के बराबर लिख देते हैं ई, और ये 2 में -1/3 को जोड़ेंगे, 2 में -1/3 को जोड़ेंगे कितना होगा, ये 6 - 1 बराबर 5/3, ये हो जाएगा n पर पावर 5/3, ये देखिए, यानी बड़े ड्रॉप की जो एनर्जी होगी वो कितना हो जाएगा n⁵ 5/3 इंटू ई हो जाएगा। तो आप ये याद रखिएगा, टोटल मैंने कितना बताया, 4 क्वेश्चंस बताया है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते दे सकते हैं, हालांकि इसका पीडीएफ मिल जाएगा, मैं चारों को एक साथ लिख देता हूं, आइए चारों को मैं एक साथ लिखता हूं। सवाल सेम रहेगा, केवल क्वांटिटी बदलेगी। देखिए तो n छोटे छोटे समरूप बूंदे जिसमें प्रत्येक की धारिता c है, सबको मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाएंगे, तो बड़े बूंद की धारिता c बिग बराबर क्या होगा n पर पावर 1/3 इंटू c, ये याद रखना पहला। दूसरा, बड़े का पृष्ठीय घनत्व कितना होगा, n पर पावर 1/3 इंटू सिग्मा। तीसरा, बड़े ड्रॉप का विभव कितना होगा, n पर पावर 2/3 इंटू किसी एक का विभव। बड़े की एनर्जी कितनी होगी ई बी, n पर पावर 5/3 इंटू ए। ये देखिए याद रखना आसान है, धारिता और पृष्ठीय घनत्व का लगभग एक जैसा है, n पर पावर 1/3 n पर पावर 1/3। धारिता है तो c, पृष्ठीय घनत्व है तो सिग्मा। एक चीज देखिए, इधर वाला तो याद रखने की जरूरत नहीं है, इधर वाला तो वही होगा जो पूछ रहा है, बड़े की एनर्जी पूछ रहा है तो यहाँ एनर्जी होगा, बड़े का विभव पूछ रहा है तो यहाँ विभव होगा, बड़े का पृष्ठीय घनत्व पूछ रहा है तो यहाँ पृष्ठीय घनत्व होगा, बड़े की धारिता पूछ रहा है तो यहाँ किसी एक की धारिता होगी। ओके, रही बात कहाँ, रही बात होगी n पर पावर याद, n भी नहीं, n पर पावर याद करने की बात रहेगी। अब n पर भी पावर याद करने में ऊपर वाला याद रखना है, क्योंकि नीचे तो सब में 3 होगा, ये देखिए 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो पावर में भी n पर जो पावर होगा नीचे सब में 3 होगा। अब याद कहाँ रखना है, पावर में जो ऊपर होगा, तो यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर होगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 5, या अलग अलग भी आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ से आप न्यूमेरिकल्स भी बना सकते हैं, आपके एम करीम में यहाँ से न्यूमेरिकल्स होंगे, हालांकि वो न्यूमेरिकल्स बहुत छोटा छोटा न्यूमेरिकल्स है, मैं उसको नहीं बताऊंगा, आपसे खुद न्यूमेरिकल्स बन जाएगा। कैपेसिटेंस वाला टॉपिक में जाइएगा एम करीम में, वहां पर आपको न्यूमेरिकल्स होगा। यदि मेरे पास बुक है, तो यदि बुक्स अभी अवेलेबल नहीं है तो आप देखिएगा एम करीम में जाकर, वहां पर आपको न्यूमेरिकल्स मिलेगा, तो वहां आप न्यूमेरिकल्स डील कीजिएगा। अब अगले लेक्चर वीडियो में हम ये देखेंगे कि जब दो चालक को किसी तार के द्वारा हम कनेक्टेड कर देंगे तो चार्ज एक पर से दूसरे पर जाता है, वहां पर हम देखेंगे चार्ज किस वस्तु से किस वस्तु पर जाएगा, और कनेक्टेड करने के बाद दोनों वस्तु की चार्ज क्या रह जाएगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे, और वहां पर कुछ ऊर्जा की भी ह्रास होती है, कितनी ऊर्जा की ह्रास होती है, पोटेंशियल भी देखेंगे हम लोग। तो आज के लेक्चर वीडियो में इतना ही, दैट्स ऑल।